أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں. امین شروع کرتے آمین ہیں یا آج رب کی العالمین. کلاس بنا کسی وقت کے ضائع کیے ہوئے، کیونکہ ہفتے میں صرف ہماری 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے. تو ہم 1 منٹ اسکرین شیئر کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں. اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم. جی آ رہی ہے. نظر آ رہی ہے. تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں بہت جلدی سے کہ لفظ لغوی معنی تھا پھینکنا، اور اصطلاحی معنی یعنی ہمارے مطلب کا کیا معنی ہے کہ ہر وہ بات جو منہ سے نکلے. اس میں پھر 2 طرح کے الفاظ تھے، با معنی اور بے معنی. با معنی یعنی میننگ فل الفاظ جن کے کی معنی ہے، اور بے معنی وہ الفاظ جس کی کوئی میننگ نہیں ہے، میننگ لیس. جس میں ہم نے چائے شائے، آئیے چائے شائے پیجیے، تو اس میں شائے جو ہے وہ محمل ہے، بے معنی ہے. تو با معنی کو ہم کلمہ کہہ رہے تھے اور با معنی کو محمل. ہم جتنے بھی الفاظ سے ڈیل کریں گے اس کورس میں وہ سب با معنی ہوں گے، اس لیے کلمہ اور لفظ دونوں ہی ہمارے لیے یہ دونوں ورڈ ہی کام کریں گے، کیونکہ کلمہ ہی ہم صرف استعمال کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہم ڈیل کر رہے ہیں قرآن اور حدیث سے، ہم سیکھ رہے ہیں قرآن اور حدیث کو، اس لیے صرف با معنی الفاظ سے ہی ہمارا واسطہ ہوگا. اب کلمہ کی 3 اقسام ہم نے دیکھی تھی، اسم، فعل اور حرف. اور اسم کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ناؤن بھی ہے، پروناؤن، ایڈجیکٹو اور ایڈورب. وربل ناؤن وہ ورب جس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو، مطلب کام کا نام جس میں زمانہ یہ ایڈ کیا گیا تھا، وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ بک میں ایڈ کرایا تھا کام کا نام، اور جس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو. جیسے سونا، سو گیا، سوتا ہے یا سو رہا ہے، یہ تینوں تو ورب ہو گئے. لیکن سونا جو کہ ایک کام ہے تو یہ اسم کے اندر آئے گا. جی ابھی آپ بالکل بھی آج جو ہے نہ آپ ٹیکسٹ بک میں جائیں گے، نہ ہائی لائٹر، نہ پین، کچھ بھی نہیں. صرف آپ اسکرین پہ پوری اٹینشن، پوری توجہ دیں. جو کچھ لکھنا ہوگا اگر یا کچھ لکھوانا ہوگا مجھے، میں الگ سے بعد میں بتاؤں گی انشاءاللہ. تو آپ صرف سنیے اور ریلیکس ہو کے صرف سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو بس آپ اس کو نوٹ کر لیں اور کلاس کے آخر میں پوچھ سکتی ہیں. اسم کی آج آپ 2 پہچان تو آپ کو آتی تھی کہ شروع میں ال ہو اور آخر میں تنوین ہو. 2 پہچان آج آپ اور نوٹ کر لیں. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اونلی اسم کیری تنوین. صرف تنوین جو ہے وہ صرف اسم کے میں ہی آتا ہے اور وہ اسم کے آخر میں آئے گا. یاد رکھیں کہ ہر اسم پہ تنوین نہیں آئے گا، لیکن ہر تنوین والا لفظ اسم ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اسم کے آخر میں تنوین ہو، اور آخر کی ایک اور علامت آپ نوٹ کر لیں کہ یہ گول تا موجود ہو. اگر گول تا آپ کو کسی اسم کے آخر میں، کسی لفظ کے آخر میں نظر آتا ہے تو وہ بھی اسم ہی ہوگا، گول تا. تو آپ کے پاس آخر کی 2 علامتیں اب ہو گئیں، تنوین اور گول تا، جس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، لیکن آپ فی الحال گول تا سے ہی اس کو یاد کریں. اور شروع کی ایک علامت آپ کو آتی تھی کہ اسم کے شروع میں ال ہو. اب اس میں ایک اور آپ ایڈ کر لیں کہ اگر وہ حرف میم سے شروع ہوتا ہو. زیادہ تر الفاظ جو میم سے شروع ہوتے ہوں، لیکن یہ میم اس کا روٹ لیٹر نہ ہو. ٹھیک ہے؟ یہ میم جو ہے اس کے روٹ لیٹر کا حصہ نہ ہو. جیسے مسلمن، تو یہ جو اسم ہوگا کیونکہ اس کا روٹ لیٹر ہے سین لام میم، اور جو شروع کا میم ہے یہ کیا ہے؟ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے. تو اب آپ کے پاس آج 4 علامت، پہلے ہم نے 2 بتائی تھی اور اب یہ 4 ہو گئی. ایک بار پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں.
अगर किसी लफ्ज के आखिर में आपको तन्वीन नजर आए या गोल ता नजर आए तो ये जरूर इस्म होगा, और अगर शुरू में अल नजर आए तो ये इस्म होगा, और शुरू में मीम नजर आए जो कि रूट लेटर का हिस्सा ना हो तो ये भी इस्म होगा। लेकिन यहाँ देखिए मोस्ट लिखा हुआ, ज्यादातर, तो इसलिए एक्सेप्शन के लिए इसके लिए तैयार रहें। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये है इसमें से कि किसी भी इस्म को अब हम पहचानेंगे कैसे। जब हम उस इस्म को सही तरह से पहचानेंगे तभी हम जुमले में, सेंटेंस में उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। न सिर्फ इस्तेमाल कर सकेंगे बल्कि कुरान की किसी आयत का या हदीस का हम सही तरीके पे तर्जुमा कर सकेंगे और उसे समझ भी सकेंगे। इस समझने के लिए, तर्जुमा करने के लिए हमको जरूरी है कि हम किसी भी इस्म को इन 4 पहलू से, इन 4 कैरेक्टरिस्टिक से हम जरूर पहचाने। सबसे पहले आप देखें केस है, जिसको कि केस हालत, इसको समझ लें पोजीशन, कि उस इस्म की उस जुमले में क्या पोजीशन है, वो काम कर रहा है या उसके ऊपर काम हो रहा है या वो किसी से ताल्लुक उसका पता चल रहा है। ये और सिर्फ अरबिक में ही नहीं, हर लैंग्वेज में इस्म सिर्फ इन्हीं 3 हालत में होता है, हर लैंग्वेज में। पता नहीं हम अरबिक से थोड़ा घबरा जाते हैं, जब अरबिक में हमें ये वास्ता पड़ता है तो क्या होता है कि हम थोड़ा परेशान होते हैं, हालांकि परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। इंग्लिश में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है और उर्दू में भी हम पढ़ते हैं, बल्कि आम बोलचाल में भी हर वक्त हम इस्म को किसी न किसी पोजीशन पे ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसी को आज हम देखेंगे। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये जो इस्म की जो ये हालत है, रफा, नसब, जर, ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में भी हम करते हैं, और आप देखेंगे कि इट्स वेरी इजी, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, और आज हम इसी से डील करेंगे इंशाल्लाह। अगली चीज जो हम देखते हैं वो है जिन्स या जेंडर, कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। अरबिक में ये बात याद कर लें, उर्दू की तरह, जैसे उर्दू में भी हर इस्म या मेल होता है या फीमेल होता है, या मुजक्कर होता है या मुअन्नस होता है, ठीक इसी तरह अरबिक में भी हर इस्म इन्हीं 2 कैटेगरी में होगा, या मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। इंग्लिश की तरह यहाँ न्यूटर जेंडर नहीं है। तो हर वो चीज जो कि नॉन लिविंग होगी वो भी इन 2 कैटेगरी में से किसी न किसी कैटेगरी में फॉल कर रही होगी। तो ये हो गया जिन्स, ये भी हमारे लिए नई चीज नहीं है, इसको भी हम जानते हैं। इस पूरी टेबल में सिर्फ एक चीज है जो आपके लिए यहाँ पे नहीं है, वो आ रही है अब। तीसरी तरह से जो हमें इस्म को देखना होगा वो है अदद या नंबर। वो वाहिद है यानी सिंगुलर है, डुअल है, मुसन्ना है, या प्लूरल है यानी जमा है। यहाँ पे देखिए कि अरबिक में नंबर हमारे पास 3 कैटेगरी हमने नंबर की डिवाइड की हुई है, वाहिद, मुसन्ना और जमा। जबकि उर्दू में और इंग्लिश में वाहिद, जमा या सिंगुलर और प्लूरल ही थे। तो बस ये एक चीज आपको नई याद करनी है। इन सारी चीजों में से सिर्फ ये डुअल आपको, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है इसका, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब द लीस्ट कंफ्यूजन आई हैव सीन इज इन डुअल। तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा इंशाअल्लाह ताला। चौथी चीज है वुसअत, या किस कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन। इससे भी हम सब लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कोई खास नाम, खास जगह जो होती है वो प्रॉपर नाउन में जाती है, मार्फा में जाती है, और जो एक आम जगह की बात करें, हम बोले अगर सिर्फ शहर बोले तो ये जो है चला जाएगा कॉमन नाउन में, और अगर हम मक्का बोले तो ये चला जाएगा प्रॉपर नाउन में। तो हमें ये भी पता है। तो ये बस इन चीजों पे हम टेस्ट करके, इन 4 चीजों पे हम उस इस्म को अगर पहचान ले तो हम उसका सही तर्जुमा कर सकते हैं, और सेंटेंस में हम सही तरह से उसे समझ सकते हैं, या हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। आगे बढ़े। अब देखते हैं जो हमने पहली बात की कि इस्म
की हालत, उस सेंटेंस में इस्म किस हाल में है, उसकी क्या पोजीशन है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। इसको इन्फ्लेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, और इस्म की हालत है। इसके लिए हमने जो यहाँ बनाया है पहले वो देख लें। कोई भी इस्म इंग्लिश में जब हम पढ़ रहे थे तो इस्म 3 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन में आ रहा था। जैसे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव क्या है कि वो इस्म काम कर रहा हो, इस्म काम कर रहा हो, और इंग्लिश में हमने इसे यूज किया था। हमने एग्जांपल लिया है ही, हिम, हिज का। इसी से समझने की कोशिश करेंगे। ही और ऑब्जेक्टिव जिसके ऊपर काम हो रहा हो, और वह यहाँ पे हमने उसी शख्स को हिम कहकर पुकारा, जिसको अभी हमने ही कहकर पुकारा था जब वो काम कर रहा था। अब अगर उसके ऊपर काम हो रहा है तो हम उसको हिम कहकर पुकारते हैं। और अगर हम उसकी किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, हिज पेन, हिज बुक, किसी चीज से उसका ताल्लुक बताना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ पे ना ही यूज करते हैं ना हिम, बल्कि हिज यूज कर रहे होते हैं। और यही हमारा ये जो ही, हिम, हिज, ये 3 पोजीशन है, यही हमारी रफा, नस्ब और जर की पोजीशन है। तो ऑलरेडी वी नो, मतलब कोई नई चीज हम सीखने नहीं जा रहे हैं। बस फर्क ये है कि अब हम अरबिक लैंग्वेज सीख रहे हैं, और लफ्ज नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव की जगह पे अब हम रफा, नस्ब और जर इसको बोलेंगे इंशाल्लाह। एक सेंटेंस भी नीचे लिखा है हमने, जैसे ही गेव हिम हिज पेन। तो देखिए काम किसने किया, दिया किसने, ये है फेल। काम क्या है, गेव, किया गया जो काम, फेल ये हुआ। अच्छा, ये काम किया किसने है, ही ने किया है। तो ये हो गया हमारा नॉमिनेटिव या रफा। ही की पोजीशन क्या है यहाँ पे, रफा, और उसने दिया जिसको है वो हिम, ये है नसब। हिम की पोजीशन जिस बंदे को दिया है वो है नसब की पोजीशन में या ऑब्जेक्टिव पोजीशन में, उसके ऊपर काम हुआ है, इसको हम अरबिक में कह देंगे नसब। और हिज पेन, कलम किसका है, तो ये जिसका कलम है वो है जर की हालत में या पॉजेसिव। हिज पेन पॉजेसिव तो हमें अच्छी तरह समझ में आ रहा है, और इसी को कहते हैं जर की हालत। उर्दू में देख लेते हैं, हामिद ने खालिद को उसका कलम दिया। अब अगर हम ये कहें कि काम किसने किया, ये कैसे आप बताएंगे, तो आप कहेंगे ने से हमको पता चल रहा है कि हामिद ने काम किया है। तो उर्दू में ये ने वर्ड जो है ये बताता है हमको कि काम करने वाला कौन है, इससे हमको पता चल जाता है। हामिद तो चेंज नहीं हो रहा है, हामिद की शक्ल में कोई चेंज नहीं नजर आ रहा है, लेकिन इसके आगे ने हमको बता रहा है कि हामिद काम करने वाला है। ठीक है, काम करने वाले को फाइल कहते हैं, फाइल। तो हामिद यहाँ पे काम कर रहा है, ये नॉमिनेटिव केस में हो गया। और खालिद को दी गई है कलम, तो ये को हमको बता देता है कि ये खालिद की पोजीशन जो है ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव केस में। और उसका कलम दिया, तो यहाँ पे उसका, ये का बता रहा है हमको कि ये उस जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव, उसका कलम, ये का हमको बताता है कि ये जर की पोजीशन में है, ये उस जो है वो जर की पोजीशन में। आपको पता है कि उस, ये प्रोनाउंस भी हमारे इसम ही में आते हैं। वापस चलते हैं, यहाँ पे देखिए बताया कि उर्दू में ने से पता चलता है, किसी इस्म के आगे जब ने आता है तब हमको पता चलता है कि उसने काम किया है, और उसके आगे जब को नजर आता है तब हमको पता चलता है कि उसके ऊपर काम हुआ है। और का, की, या जैसे उसका पेन, उसकी पेन, उनका पेन, उनकी पेन, इससे हमें पता चलता है कि ये पॉजेसिव हालत में है। इसी तरह मेरा, मेरी, मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए रा री उर्दू में यूज करते हैं हम, मेरा पेन, मेरी पेन, हमारा पेन, हमारी पेन, प्लूरल के लिए। तो ये पहचान है हमारी किसी भी इस्म को किस हाल में वो है पहचानने की। यहाँ पे देखिए हमने लिखा फाइली, जो इस्म काम कर रहा
काम करने की पोजीशन में होगा वो फाइली हालत में होगा, जिसके ऊपर काम हो रहा होगा उसको मफूली हालत कहेंगे हम कि वो इस मफूली हालत में है, और इजाफत जिसका कि मतलब है ताल्लुक, उस इस्म का किसी चीज से ताल्लुक का इजहार हो रहा होगा तो वो इस्म इजाफत की हालत में कहलाएगा। इसको हमने यहाँ पे ताल्लुक लिख लिया है कि अगर इजाफत वर्ड याद रखने में या समझने में थोड़ा मुश्किल हो तो इसको ताल्लुक से याद रखिए, इस्म का ताल्लुक पता चल रहा है। ये सारी टर्म्स के अगर ये टर्म्स मुश्किल लगे तो भी इसके उसमें जाने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप सुनती रहें, रिलैक्स होके बार बार हम बोलेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। तो बस अब यहाँ पे देखिए नॉमिनेटिव केस को अरबिक में रफा कहते हैं, बिल्कुल ही वाली पोजीशन पे जो भी चीजें आएंगी वहां पे आप समझ लें कि वो रफा है। ये था एक्चुअली रफ़उन, ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने इस्मुन का बताया था, रफ़उन नस्बुन और जर्रुन था, लेकिन यहाँ पे हमने देखे कि कहा है कि ऑलमोस्ट ही इस तरह से। फिर हमने अब जब हम किसी भी इस्म को जब हम तो बोलते हैं जब वहां पे खत्म करते हैं तो हमें सुकून देना होता है, तो रफा जैसे बोलने में मुश्किल होता है तो हम इसको बोलना शुरू हो जाते हैं रफा नसब और जर, इस सुकून को फतहा दे के बोलते हैं जर। असल में ये था रफ नस्ब और जर, तो ये बोलने में मुश्किल हो रहा है तो हम बोलेंगे रफा नसब और जर। असल वर्ड है रफ़उन नस्बुन जर्रुन, और अगर ये मारफा की हालत में होगा तो अर्रफ़उ अन्नस्बु अज्जर्रु, इस तरह से होगा। तो रफा नसब और जर। सब लोग माइक अनम्यूट करके हमारे साथ 3-3 बार इन अल्फाज को बोल लें, हम बोलते हैं और आप रिपीट करें। रफा रफा नसब जर, सब सब जर रफा रफा नसब जर जर, जर रफा नसब अब बोले अब पीछे बोलिए रफा फाइली हालत, रफा फाइली हालत नसब नसब मफूली हालत, हालत मफूली जर इजाफी हालत। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? अगर जिसको समझ में नहीं आया वो पूछे तो मैं उसका क्लियर कर दूं। इसमें बाजी बुक में अलग दिया है ना, इसमें जात और मैंने कहा कि अभी आप बुक मत देखें, बुक को मैं इंशाल्लाह अच्छा। अगली क्लास में लेके आऊंगी, ठीक है? ओके, अभी आप बुक की तरफ ना देखें, बस यहाँ स्क्रीन पे देखें अपनी, ठीक है? स्क्रीन से रिलेटेड अभी तक कोई चीज ऐसी जो आपको पूछनी हो तो आप पूछ लीजिए। आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? नहीं मैम, मुश्किल नहीं है मैम। ये जो इसम के लिए चार पहलू है इसम के, ये इकसाम होंगी, इनको पहलू कहेंगे या इकसाम कहेंगे? हालत, जिन्स, ये आप समझ लें कि 4 टेस्ट हैं जिसके ऊपर से उसको इकसाम नहीं कहेंगे, ये पहलू ही कहेंगे। ये 4 टेस्ट है जिससे इस्म को आप गुजार के कि उस इस्म को सही तौर पे आप पहचान पाएंगी। पहचानने के 4 टेस्ट हैं, अक़साम नहीं है, ठीक है? समझ में आ गई बात? जी मैम। टेस्ट थ्रू व्हिच यू हैव टू पास द इस्म। जब आप कर लेंगी, पास करेंगे इस्म को इससे, तब आप उस इस्म को सही तौर पे जुमले में पहचान लेंगी इंशाल्लाह। 1 बाय 1 हम करेंगे तो आप देखेंगे कि समझ में आएगी। और एराब पहले इसलिए मैम ये रिकॉर्डिंग लेक्चर अपना जरूर भेजिएगा। जी हाँ जरूर, ठीक है हाँ वो कुछ सबको काफी जी, थैंक यू। तो आगे चले। मिस जुमले में जो 3 है ना, फाइल है और मफूल है और अजाफी हालत जो है वो फेली हालत भी होगी, ओनली अजाफी होगी? जी जो अजाफी हालत ये फेली हालत भी होगी, क्योंकि जुमला कोई भी जब हम बनाते हैं ना तो उसमें फाइल, मफूल और
फेल। अभी जो देखिए, जो अभी तो हम हर अभी अल्फाज में ही है, जुमला जब करेंगे इंशाअल्लाह ताला तब उसको देखेंगे, अभी इंडिविजुअली लफ्ज को ही देखते हैं, ठीक है। अजाफी हालत जो अजाफी ही होगी। जी हाँ, इजाफी जैसे हमने बताया हिज पेन, बस आप अभी जुमले के बारे में ना सोचें, अभी हम लोग तो लफ्ज पे ही हैं, बल्कि मुरक्कब पे भी अभी जा नहीं रहे हैं। तो बस यहाँ पे जो हिज वाला वर्ड था ना, वो है इजाफी हालत, ठीक है। ओके। और उर्दू में जो आप कह रही थी उसका पेन, बस अभी अभी यही रहने दीजिए, उसका पेन। इन सेंटेंस को देखते हैं इंशाल्लाह थोड़ा सा। हामिद ने महमूद को मारा, तो यहाँ पे फाइली हालत में कौन है? हामिद। 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 और आपको पता कैसे चला कि हामिद फाइली हालत में है? इसके बाद ने की वजह से, क्योंकि हामिद काम कर रहा है, हामिद ने मारा। जी हाँ, ने की वजह से आपको पता चला कि हामिद फाइली हालत में है। और महमूद को कैसे पता चला कि मफूली हालत में? की वजह से, जी हाँ, की वजह से, ठीक है। और आगे देखते हैं हम इसको अब अपने अरबिक में कैसे हमको पता चलता है। देखें, उर्दू में हमें ने और को से पता चल रहा था कि, और ने को से, और फिर बाद में वो हमने जो यहाँ बताया कि का की और रा री से पता चल रहा था, है ना, का की और रा री से पता चल रहा था कि ये इजाफी है या जर की हालत में। अब अरबिक में आइए देखें कैसे पता चलता है। आप लोग थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट कर लें, उसके बाद जब ये हम एक्सप्लेन कर लेंगे फिर आपको मौका देंगे। हाँ, अब देखते हैं कि अरबिक में कैसे पता चलेगा कि कौन सा इस्म फाइली हालत में है जब हमें वो सेंटेंस नजर आए तो, और कौन सा इस्म मफूली हालत में है, और कौन सा इजाफी यानी ताल्लुक बता रहा है किसी चीज से। अरबिक में एक बात अच्छी तरह इसको याद कर लें कि इस्म के आखिरी हर्फ की आवाज बताती है, बस आपको ये याद रखना है, इस्म के आखिरी हर्फ की आवाज बताती है कि इस्म किस हालत में है, वो काम कर रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, या उसका किसी चीज से ताल्लुक पता चल रहा है। किस चीज से पता चलता है? आखिरी हर्फ की आवाज। बस आप ये फ्रेज याद रखें, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आखिरी हर्फ की आवाज। लफ्ज हमने बताया था ना, लफ्ज कैसे बनते हैं? हुरूफ और हरकात के मिलने से अल्फाज बनते हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आखिरी हर्फ के, अब जैसे ये लफ्ज है आपका, इस लफ्ज का ये हर्फ आखिरी है और इसके ऊपर जो ये हरकत जो आपको दिख रही है ये, तो इस हर्फ की आवाज, हरकत हम नहीं कहेंगे इसको, वो भी हम आगे बताएंगे, इस आखिरी हर्फ की साउंड बताएगी कि वो काम कर रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, या उसका किसी चीज से ताल्लुक पता चल रहा है। और आज हम सबसे आसान वाला करेंगे, सिर्फ वाहिद इस्म को देखेंगे और जमा मुकस्सर को देखेंगे, क्योंकि वाहिद इस्म और जमा मुकस्सर की आवाज इन चीजों से चेंज होती है। मतलब उनके आखिर में अगर ऊ या उन दिख रहा है किसी इस्म के आखिर में, किसी वाहिद इस्म, अभी हम जमा मुकस्सर आपको एक्सप्लेन करते हैं, इसके लिए परेशान ना हो। ये दो कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें बहुत आसानी से आप इन तीनों पोजीशन को पहचानेंगी, और बल्कि पढ़ रहे होते हैं हम इसको तिलावत करते वक्त बार बार, तो ये तो हमारी जबान पे और हमारे जहन में बहुत अच्छी तरह से हैं, बस आज हम इनको समझ रहे हैं। वी नो इट, वी आर रिकॉग्नाइजिंग देम, मतलब हम इनको पहचान रहे हैं आज। तो याद रखें, किसी इस्म के किसी वाहिद इस्म को ही लेते हैं, अभी ये छोड़ दें अभी अगर नहीं पता है तो। वाहिद इस्म के आखिर में अगर आपको पेश या तनवीन नजर आ जाए तो आप समझ जाएंगी कि ये काम कर रहा है, ये फाइली हालत में है, ये ही की पोजीशन में है, इसके आगे ने लगा हुआ है। यानी जब आप तर्जुमा करेंगी तो आप तर्जुमा करेंगी ने, इसके बाद ने लगा के करेंगी, ठीक है। अगर हम कहें हामिदुन तो आप कहेंगी हामिद ने, ठीक है। आगे चलते हैं।
अगर उस इस्म के आखिर में अगर आपको जबर नजर आए या दो जबर की तनवीन नजर आए, जबर तनवीन फतहा तनवीन नजर आए, तो आप समझ जाएंगी कि इसके ऊपर काम हो रहा है, यानी ये मफऊली हालत में है। और ठीक इसी तरह अब मुझे तो आगे शायद बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए कि अगर किसी वाहिद इस्म के आखिर में और जमा मुकस्सर के भी आखिर में जेर हो या जेर तनवीन हो, तो आप समझ जाएंगे कि ये हालत जर में है, या किसी इस्म से इसका ताल्लुक पता चल रहा है। किस हालत में है? हालत जर में है। अब चूंकि मैंने जमा मुकस्सर बोल दिया तो मैंने सोचा कि मैं इसको बता भी दूं, और ये भी कोई नई चीज नहीं है, ये भी इंग्लिश में हम जमा मुकस्सर और जमा सालिम को करते रहते हैं। तो यहाँ देख लें, जमा दो तरह के हैं, बस ये जस्ट फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे तो आप वो परेशान ना हो कि ये कौन सी टर्म आ गई, इसलिए मैंने सोचा कि ये बता दूं। जमा यानी प्लूरल दो तरह के होते हैं इंग्लिश में भी, साउंड प्लूरल और ब्रोकन प्लूरल। साउंड प्लूरल देखिए, पेन से हमने पेन्स बना लिया, बुक से बुक्स बना लिया। इसमें क्या हुआ कि पेन PEN पेन यहाँ भी था और इसकी पूरी शक्ल वैसे के वैसे मौजूद है, PEN मौजूद है, आखिर में हमने कुछ ऐड किया और ये बन गया प्लूरल, इसको कहते हैं साउंड प्लूरल। इसी तरह बुक से बुक्स, कहने का मतलब ये है कि जब जमा बना तो वाहिद की शक्ल पूरी की पूरी सही सलामत रही, पूरी की पूरी वैसे ही मौजूद रही, इसलिए इसको साउंड प्लूरल कहते हैं। और अरबिक में चूंकि ये सही सलामत रही तो ये जमा सालिम है। इसको नीचे अभी देखते हैं, आइए ब्रोकन प्लूरल भी देख लेते हैं। इंग्लिश में फुट से हमने फीट बना लिया, ये देखें यहाँ पे इसके हर्फ ही चेंज हो गए, ये ओ चेंज हो गया ई में, इसकी शक्ल बदल गई, इसलिए इसको हमने कहा ब्रोकन प्लूरल। इसी तरह नाइफ से नाइफ्स बन गया, एफ गायब हो गया और उसकी जगह वी आ गया और आगे एस लग गया, और इस तरह से वाहिद की शक्ल तब्दील हो गई, इसलिए इसको कहेंगे जमा ब्रोकन प्लूरल या मुकस्सर, जमा मुकस्सर, टूटा हुआ जमा, जमा यहाँ टूट गया। अब इसी चीज को अरबिक में देख लें, मुस्लिमुन, इसमें देखिए आपके चार लफ्ज जो वाहिद के अंदर थे, मीम सीन लाम मीम, ये चारों आपको प्लूरल में वैसे ही मौजूद नजर आ रहा है, मीम सीन लाम मीम। उसके आगे हमने जैसे यहाँ एस ऐड किया था, ये स्क्रीन में लगता है कि आप लोग के पास थोड़ा सा लेट शायद मूव करती है, तो हम वेट कर लेते हैं। हाँ अब देखें, जब प्लूरल बना तो ये चारों हर्फ जो मौजूद जो वाहिद के थे, ये जमा के अंदर उसी सीक्वेंस में मौजूद है, ना इसके बीच में कोई हर्फ आया ना कुछ भी। तो ये और आगे हमने जैसे यहाँ एस ऐड हुआ था, इसी तरह यहाँ पे ऊना ऐड हुआ है, तो ये हो गया हमारा जमा सालिम। एक और देखिए, सालिहुन से सालिहूना, स्वाद अलिफ लाम हा, स्वाद अलिफ लाम हा, आपको सब कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है, और ये आखिर में ऐड हुआ, इसकी शुरू की शक्ल मौजूद रही। इस तरह के जमा को जमा सालिम कहते हैं। इसी तरह मुअल्लिमुन से मुअल्लिमूना, इसमें भी देखें वाहिद की शक्ल पूरी पूरी मौजूद है, तो ये हमारा जमा सालिम है। आज जो हम बात कर रहे हैं, जो हम एराब जिनका चेंज करेंगे, वो करेंगे जमा मुकस्सर का। ये पहले भी हम लोगों ने किया हुआ है, हमें लगता है अक़लामुन किस कहीं जिक्र हो चुका है किसी सेकंड क्लास में आई थी। क़लमुन से बना अक़लामुन, यहाँ देखिए इसकी शक्ल ये क्या हो गया, यहाँ पे अलिफ भी ऐड हो गया, काफ के ऊपर हमारे सुकून आ गया, लाम और मीम के बाद में भी एक अलिफ दाखिल हो गया, तो इसकी शक्ल तब्दील हो गई। तो ये हमारा बना, ये जब इस तरह के जमा को कहते हैं जमा मुकस्सर। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पे नाइफ के साथ हो गया या फुट के साथ हो गया। यहाँ भी देखिए क़ल्बुन था जिसका कि मतलब है दिल, और जब ये प्लूरल बना कुलूबुन तो इसकी देखिए वाव भी बीच में ऐड हो गया, और ये भी यहाँ पे पेश भी आ गई हमारी।
कल्बुन से कुलुबुन बना, शक्ल इसकी तब्दील हो गई। इसी तरह किताबुन से कुतुबुन, ये अलिफ यहाँ गायब हो गया, आवाज भी हमारी बदली, किताबुन से कुतुबुन। तो इस तरह के जमा मुकस्सर कहलाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं वाहिद इस्म और जमा मुकस्सर, ये इसी तरह से शक्ल तब्दील करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ये रफा की हालत में होंगे तो ये पेश में और पेश तनवीन नजर आएगी आखिर में, और इसकी आवाज देखें, आवाज हमने कहा था ना, तो ये उ और उनकी आवाज के साथ खत्म होंगे। हमने आपको क्या कहा था कि एराब के लिए सिर्फ आप लफ्ज जो याद करेंगे, जो फ्रेज याद करेंगे, वो है आखिरी हर्फ की आवाज। यहाँ पे देखिए आखिरी हर्फ पे। और दूसरी बात, एक चीज हमेशा, जब भी मैं डैश लिखूंगी ना किसी नोट्स में या किसी होमवर्क में, जब आपको ये डैश नजर आए तो इस डैश से आप हमेशा समझिएगा कि आई मीन द लास्ट हर्फ। उस लफ्ज के लास्ट हर्फ को जब भी मुझे बताना होगा मैं डैश का यूज करूंगी। तो अगर ये डैश नजर आ रहा है तो मुझे अब कहने की जरूरत ही नहीं है कि आखिरी हर्फ, क्योंकि ये डैश का मतलब ही मेरी पूरी क्लास में जो चलेगी आखिर तक इंशाल्लाह, उसमें आखिरी हर्फ जहां भी हमको लिखना मकसूद होगा वहां हम इस तरह का एक डैश बनाएंगे, और आप समझ जाइए कि ये दिस ब्लैंक शोज द लास्ट हर्फ ऑफ दैट लफ्ज। तो यहाँ पे देखिए उ उनकी आवाज आ रही है, यहाँ अ अन की आवाज आ रही है, और यहाँ ई इन की आवाज आ रही है ना, बदल गया। देखते हैं अब कुछ हम इसी को यहाँ पे दिखाया है कि ये याद रखें कि यहाँ पे आप चाहे तो लिख लीजिएगा वाहिद इस्म और जमा मुकस्सर, ये जो है इस तरह से अपनी आवाज तब्दील करते हैं। दूसरी चीजें थोड़ा सा दूसरी तरह से चेंज करेंगी। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग इन चीजों से हम वाकिफ हैं, हम जानते हैं, अब हम पहचान रहे हैं। बार बार हम कह रहे हैं हम ज्यादातर चीजें जानते हैं, बस उनको हम पहचानते नहीं हैं। और इस क्लास में हम काम सिर्फ पहचानने का कर रहे हैं। पहला कलमा यहाँ देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे मोहम्मदुन, ये यहाँ पे पेश तनवीन क्या बता रही है कि मोहम्मद किस हाल में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफा की हालत में है, फाइली हालत में है। ठीक है, हम तर्जुमा या आगे किसी डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, बस आप ये देखें कि मोहम्मदुन, ये पेश तनवीन बता रही है कि ये रफा की हालत में है। यहाँ पे देखें आपको जबर तनवीन नजर आ गई। कलमा शहादत में मोहम्मदन, ये किस हालत में है, नसब की हालत में है यहाँ पे ये। और दुरूद इब्राहिमी में यहाँ देखिए मोहम्मदिन, हमें कसरा तनवीन नजर आ गई, ये बता रही है कि यहाँ पे ये लफ्ज जर की हालत में है। बस एक बार बताएं कि अगर किसी भी 86 लोगों में से किसी एक को भी मुश्किल जिसको लग रहा है वो बताएं उनको। अगर हम खामोशी है तो हम समझ जाएंगे कि सबकी समझ में आ रहा है। अगर किसी को नहीं समझ में आई है ये बात तो बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जज़ाकल्लाह, आप लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं, इस वजह से आप लोगों की समझ में भी आ रहा है। और एक बात मैं कहूंगी, जैसे कि मैंने कल मैसेज किया था कि क्लास जरूर अटेंड करें। रिकॉर्डिंग कभी मेरा दिल चाहता है मैं करूं भी, और कभी दिल चाहता है ना भी करूं। कि याद रखें कि जब हम क्लास में होते हैं तो हम, चूंकि जैसा कि हदीस का मफहूम है कि हम एक जगह पे अलग अलग, देखिए हम तो अलग अलग मुल्कों से इकट्ठे, सुभान अल्लाह, इस जूम रूम के अंदर। तो जब हम क्लास में मौजूद होते हैं, बरकतें, मतलब बरकतें भी हमारे ऊपर, फरिश्तों का भी नुज़ूल रहता है। इस वक्त हम सब हालांकि अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन हमारा यकीन है कि हम सब को फरिश्तों ने घेर रखा है उस हदीस के उससे, कि जब हम इल्म हासिल करने के लिए मुख्तलिफ जगहों से एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो हम इस वक्त किस जगह इकट्ठा हैं, इस जूम रूम के अंदर, तो रहमतें बरकतें सब शामिल होती हैं। और रिकॉर्डिंग सुनते वक्त तो जाहिर है एक रिकॉर्डेड चीज है, हम अकेले सुन रहे होंगे बैठे, तो शायद कि वो चीज
थोड़ी सी कम हो। तो इसलिए मेरी बहुत ख्वाहिश होती है कि आप सब क्लास में मौजूद हों, क्योंकि पर्सनली मैं अपना बताऊं कि मैं जब क्लास में होती हूँ और उस क्लास की हम रिकॉर्डिंग हम बाद में अगर कभी सुन रहे होते हैं तो कभी भी वो चीज रिकॉर्डिंग में आती नहीं है। लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ज्यादा मजबूरी के तहत अगर क्लास ना अटेंड कर सके किसी ऐसी उससे कि जो कि उनके बियॉन्ड कंट्रोल है, तो ऐसे में रिकॉर्डिंग उन लोगों के लिए है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने सारे अपॉइंटमेंट्स, सारी मसरूफियात को, क्योंकि हमें एक हफ्ते पहले से ही पता होता है, बल्कि शुरू से ही पता है कि अब हमारी इस वक्त ये क्लास होगी, तो हम अपनी सारी चीजों को उसी हिसाब से इंशाल्लाह मैनेज करें। और न सिर्फ ग्रामर की बात कर रहे हैं, बल्कि जो भी क्लास है, उस जो भी क्लास के लिए आपकी कमिटमेंट है, उन कमिटमेंट को इंशाल्लाह ताला लाइव लिया करें, तो उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। चले वापस आते हैं अपनी क्लास में। वो जहन में हमारे बना होता है क्वेश्चन कि हमने आज ये क्लास में सुना है, तो अगर हमें कहीं लग रहा होता है कि हम भूले तो नहीं, तो रिकॉर्डिंग लगा के ना हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, तो बहुत अच्छी बात है कि उसको रिवाइज करने के लिए हम रिकॉर्डिंग को सुनाए, कि फायदा आपने बहुत अच्छा बताया कि हम क्लास भी अटेंड करें और बाद में अगर हम दोबारा सुनना चाहें तो सुन ले रिवाइज करने के लिए, या तो जरूर रिकॉर्डिंग में भेजूंगी इंशाल्लाह। बंदा इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा होता है कि ये क्वेश्चन ऐसे है, तो कभी कभी बीच में वहां आता कि नहीं ऐसे नहीं, शायद हमने गलत जहन में हो गया है, तो फिर उसको करेक्शन करने के लिए रिकॉर्डिंग बहुत फायदेमंद रहती है। ठीक है, मैं भेजूंगी इंशाल्लाह ताला। वापस आते हैं, देखिए ये आए थे आई थिंक 251, 251 है ये सूरह बकरा की। एक मिनट क्लास में वापस चलते हैं। सूरह बकरा की ये आयत है 251। यहाँ पे देखें, व कतला मतलब और कत्ल किया। हमने बताया था ना 3 हर्फ वाले, जो एक क्लास में बताया था, जब इस तरह से आपको 3 हर्फ वाले लफ्ज दिखे और आखिर में फतहा दिखे तो अब समझ जाए कि पास्ट टेंस है ये। तो यहाँ पे देखें, तर्जुमा किया और कत्ल किया। अब यहाँ आपको आगे क्या दिख रहा है, दावूदू। तो ये पेश, हमने आपको अभी जो तीनों एग्जाम्पल दिखाए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों चीजों में, वो तनवीन के थे। यहाँ पे हम आपको सिंगल हरकत की दिखाना चाह रहे हैं कि और कत्ल किया दावूदू। अब यहाँ देखिए, ना हमें कोई ने दिख रहा है, ना कोई को दिख रहा है, लेकिन ये पेश ने, इस पेश ने आखिरी हर्फ, ये आखिरी हर्फ के, ये इसम है आपका दाऊद, और इस दाऊद के आखिरी हर्फ आवाज ने, हम हरकत नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हरकत है ही नहीं, आवाज ने हमको बता दिया कि यहाँ पे इसका ये करने वाला है, ये फाइली हालत में है। कत्ल किया है किसने, दाऊद ने। जब तर्जुमा हम करेंगे तो दाऊद के आगे हम ने लगाएंगे, ठीक है। और कत्ल किया दाऊद ने, और इसी तरह जालूता, ये आखिरी हर्फ जालूत इसम है, इसका आखिरी हर्फ है ता, और इसकी आवाज जो आ की आवाज आई है, फतह की आवाज आई, इसने हमको बताया कि ये मफऊल है, मतलब इसको कत्ल किया गया है। इसके आगे जब हम तर्जुमा करेंगे तो लिखेंगे जालूत को। एक बार फिर हम इसको बोल देते हैं कि ये, इसमें से ये फ्रेज हम देख रहे हैं, वक़तला दाऊदु जालूता। व और कतला कत्ल किया, दाऊदु, दाऊद इसम है, और इसके आखिरी हर्फ यानी दाल, इसकी आवाज हमको बता रही है, ऊ की आवाज बता रही है कि ये फाइल है, इसने काम किया है। इसके आगे हम ने लगाकर तर्जुमा करेंगे, दाऊद ने, जालूता, जालूत इसम है, ता इसका आखिरी हर्फ है, और इसकी आवाज हमको बता रही है, आ की आवाज हमको बता रही है, जो कि फतह की वजह से आई है। ये आवाज हमको बता रही है कि ये मफऊली हालत में है, यानी इसके ऊपर काम हुआ है। इसका तर्जुमा हम को लगाकर करेंगे, और हम अब करते हैं तर्जुमा। और कत्ल किया
दाऊद ने जालूत को, ठीक है, और कत्ल किया दाऊद, ये पेश बता रहा है ने, जालूत ये बता रहा है, फतहा बता रही है को। तो आप देखें कि कितने सारे एक्स्ट्रा हर्फ, और इसी तरह जब आगे आप पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि जैसे ने को ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये इसी में आ गया। और इसी तरह इसी उन्हीं उसी लफ्ज के अंदर ही आपको फेमिनिन नजर आ जाएगा, डुअल नजर, मतलब एक लफ्ज ही पूरी एक बड़े से फ्रेज में उसका तर्जुमा हो रहा होगा। इससे भी हमको पता चलता है कि कुरान जो हमारा ये इस शक्ल में अगर हमारा किसी और लैंग्वेज में होता तो कितना हैवी होता, कितना बड़ा होता, मतलब ये सारे एक्स्ट्रा अल्फाज के साथ। देखिए उर्दू में हम सबको ही एराब कहते थे, जबर जेर पेश वो कहीं भी हो उसको एराब कहते थे। अरबिक में ऐसा नहीं है। अरबिक में हरकत किसी भी लफ्ज के आखिरी हर्फ के अलावा जो आपको जबर जेर पेश सुकून दिखेंगे उनको आप हरकत कहेंगी। जबर जेर पेश सुकून, फतहा दम्मा कसरा सुकून, इसको आप जो बीच में होगा इसको जज़म भी नहीं कहेंगी, ये सुकून ही कहलाएगा। जज़म भी आखिर में आता है, ठीक है, जज़म का वर्ड इस आखिर के लिए। तो किसी भी लफ्ज की इन आखिरी हर्फ के अलावा बाकी हुरूफ के ऊपर जो जेर जबर पेश फतहा दम्मा कसरा या सुकून देखेंगे उनको हम हरकत कहेंगे। लेकिन आखिरी हर्फ के ऊपर जो हरकत होती है वो हरकत नहीं होती, वो क्या होती है, एराब उसको कहते हैं, वो एराब कहलाता है। तो इसको जो है ये एराब कहलाएगा। ये पेश जो है ये एराब है और ये हरकत है, ठीक है। ये एक चीज आपको नहीं पता चली तो जब भी कहेंगे कि इस लफ्ज का एराब क्या है तो आप उस लफ्ज के आखिरी हर्फ को देखेंगे, उसकी आवाज को पहचानेंगे। यहाँ पे इसकी ऊ की आवाज आ रही है जो कि पेश से जाहिर की जा रही है। मैम आपने कहा ना कि अगर कोई अराब पूछे तो हमने लास्ट वाली हरकत को देखना है, तो लास्ट में यहाँ पे पेश थी, तो पेश के साथ अगर नीचे जेर हो, पेश ना हो जेर हो तो हम जी बिल्कुल, अगर इस आखिरी हर्फ पर पेश ना हो, जबर हो, अब जबर हो, जेर हो, पेश हो, कुछ भी हो, वो सब एराब ही कहलाएगा आखिरी हर्फ की, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे आखिरी हर्फ पे जबर थी ना, पेश तो नहीं थी, तो ये भी एराब कहलाएगी, ये एराब कहलाएगी। ये जो पेश दिख रही है ये एराब है इसका, ये जबर जो दिख रहा है ये इसका एराब है, ठीक है, हरकत नहीं है, एराब है। मैम प्लीज इसे रिपीट कीजिएगा। अगर हम अपनी कॉपी पे मतलब लिखना चाहें कैसे लिखेंगे? अराब और हरकत, अराब लिखेंगे आखिरी हर्फ की हरकत को। मैंने तो आपको सिर्फ ये बताया कि आखिरी हर्फ की आवाज, ये हरकत भी उसको आवाज ही तो दे रही होती है ना। जी मैम यही लफ्ज पूछना था कि हम आखिरी हो जाता है कि हरकत, या आप बस ये लिखे आखिरी हर्फ की आवाज, समझ आ गई? जी जी, मतलब कि जो आखिरी हर्फ पे जो भी एराब लगा, साउंड आ रही है, शायद आवाज से नहीं समझ में आ रहा है कि जो आखिरी हर्फ की जो भी आवाज है वो आवाज हमको बताती है, वो साउंड हमको बताती है कि उसका एराब क्या है। अब अगर पेश लगा है तो ऊ की साउंड आ रही है ना, जबर लगा है तो अ की साउंड आ रही है, कसरा लगा है तो ई की साउंड आ रही है, तो ये साउंड हमको बता रही है उसका एराब क्या है। जैसा कि हमने बताया था कि आज हम इसका सबसे फेमिलियर वो लेके चलते हैं, वाहिद इस्म। और अभी तक तो आपको कुछ भी याद करने को नहीं मिला, अब आएगी दो आपको याद रखने वाली चीज, तो अब बहुत गौर से बहुत अटेंटिव होके बैठ जाएं। ये इस्म, वाहिद इस्म और जमा मुकस्सर हमने आपको बता दिया ना किनको कहते हैं। वाहिद इस्म और जमा मुकस्सर ये तीनों इस तरह से चेंज होंगे। जैसे आप देखें ये वाहिद इस्म है मोहम्मदुन, तो ये रफा की हालत में इस पे दो पेश तनवीन है,
जब भी नस्ब की हालत, याद रखने वाली बात यहाँ पे है, अब आप लोग गौर से सुने और इसको याद रखें। नस्ब की हालत में जबर तनवीन के साथ जब जबर तनवीन लगाते हैं तो अलिफ का इजाफा भी होता है, ठीक है। जबर तनवीन के साथ अलिफ का इजाफा भी होता है। ये बात आप जानती हैं, तिलावत में मुस्तकिल आप इससे यू कम अक्रॉस दिस, मतलब आपका इससे वास्ता पड़ता है, लेकिन शायद कि हमने कभी गौर न किया हो। नस्ब की हालत में जब जबर तनवीन आती है तो उसके साथ अलिफ का इजाफा भी होता है। और जैसा कि हमने कहा कि जब भी आपको कोई बात बताई जाए तो एक्सेप्शन के लिए अपने जहन को खुला रखें। अभी आखिर में हम आपको 2 एक्सेप्शन भी बताते हैं, बल्कि हो सकता है अलिफ का इजाफा फतहा तनवीन के साथ होता है। तो मुहम्मदुन नस्ब की हालत में ये गया, मफूली हालत में गया। मुहम्मदन आपने अभी देखा था कलमा शहादत में कि वहां अलिफ था, और इसी तरह मुहम्मदिन ये आपने दुरूद इब्राहिमी में देखा था 2 जेर के साथ, ये हालत जर में, ठीक है। शैउन आप तर्जुमा करते हैं, शैउन का मतलब ही होता है चीज, तो इसकी पेश तनवीन बता रही है कि ये रफा की हालत में है, और फतहा तनवीन बता रही है। लेकिन आप देखें जैसे ही फतहा तनवीन आई तो हमें अलिफ का इजाफा करना पड़ा, तो फतहा तनवीन के साथ अलिफ का इजाफा होता है, ठीक है। और कसरा तनवीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस शैउन के और शैइन यहाँ पे 2 तनवीन यहाँ लग गई। अब ये है आपका एक्सेप्शन यहाँ पे। अब जैसा कि मैंने कहा, आप अभी इस वक्त कुछ भी ना लिखें, ना नोट करें, ना कुछ करें। ये PDF आपके पास मैं भेजूंगी उसमें, और इस पे जो कुछ भी लिखना होगा मैं खुद लिख के भेजूंगी, आप इस वक्त बस सुने। जन्नतुन ये एक जगह का नाम है, जगह बाग है, जगह को कहते हैं बाग। और इसकी पेश तनवीन आप देखें, जब गोलता है तो गोलता के साथ नस्ब की हालत में अलिफ का इजाफा नहीं होता। तो बस एक ही एक्सेप्शन है और एक और आगे आएगा। गोलता के साथ अलिफ का इजाफा नहीं किया जाता। जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, बाकी हर उसके साथ आप देखेंगे कि अलिफ का इजाफा किया जा रहा है। इसी तरह अब गोलता, मैंने बार बार कहा गोलता, सिर्फ ता नहीं बोला है, अगर सिर्फ ता है तो अलिफ का इजाफा किया जाएगा। बिनतुन लड़की को कहते हैं, और बिनतन ये अलिफ के इजाफे के साथ लिखा जाएगा। और आपको इसी चीज का होमवर्क भी मिलेगा, इसलिए गौर से सुनिए कि जब ताए मरबूता आप देखेंगी तो गोलता जब आप देखेंगी, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ती रहा करें, मतलब ऐसे गोलता करें। और ये नई टर्म्स जो आती है ना, इनको अपने जबान से, अपने कान से गुजार लीजिए, याद हो या ना हो उसकी फिक्र मत कीजिए, बस एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाइए। जब भी आप खोलिए इसको एक बार गोलता ताए मरबूता। हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं, आप में से ज्यादातर को आता ही होगा, मतलब ज्यादातर फेमिलियर ही होंगे। कुछ अगर ऐसे नए लोग हों कि जिनके लिए ये लफ्ज अगर नए हो तो इनको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार पढ़ें और सुने और आगे बढ़ जाएं। फिलहाल आप याद करें गोलता और खुली हुई ता, पूरी ता, गोलता और पूरी ता। गोलता के साथ अलिफ का इजाफा नहीं होगा, वेरस खुली ता के साथ अलिफ का इजाफा होगा। तो एक्सेप्शन हमारा सिर्फ गोलता है, गोलता। मैं यहाँ पे लिखूंगी, जब आपको भेजूंगी PDF ये वाला, तो यहाँ रेड से लिख दूंगी कि एक्सेप्शन गोलता। और दूसरा एक्सेप्शन है ये समाउन में, देखें आप, जब अलिफ हमजा, किसी भी कोई भी लफ्ज जब अलिफ हमजा के साथ खत्म हो रहा होगा, और यहाँ देखें इसे कहते हैं अलिफ ममदूदा, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है कि बस जैसा कि अभी मैंने कहा कि आप इसको बस एक बार बोल लें, और जब बोलेंगी तो जाहिर है सुनेंगी भी। जब भी अरबिक लैंग्वेज ग्रामर करें तो खामोश, जैसे हमारी आदत होती है ना कि हम बिना सिर्फ आंख से पढ़ रहे होते हैं, जबान से नहीं पढ़ रहे होते, होठ से नहीं पढ़ रहे होते, आंखों से ही पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप ग्रामर करेंगी
तो जबान से, होंठ से, अपने कान से, इन सब ऑर्गन्स को इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगी, मतलब बोल के, थोड़ा तेज बोल के करेंगी। तो अलिफ हमजा से जब कोई लफ्ज एंड होगा, बस ये दो इसके एक्सेप्शन है, एक ये वाला और ये, इसके अलावा हर उस पे नसब की हालत में अलिफ ऐड होगा। सब अलिफ हमजा से जब कोई लफ्ज एंड होगा, समाउन इसका मीनिंग है, तो आप देखें कि ये जो है सिर्फ इस पे आप फतह तनवीन लगाएंगी, उसके बाद आप अलिफ का इजाफा नहीं करेंगी, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द 2 एक्सेप्शंस। बस टोटल 2 एक्सेप्शन है इस रूल के, एक है गोलता और एक है अलिफ हमजा। अब आप सब हमारे पीछे पढ़ें, गोलता, तो अलिफ नहीं लगाएंगे, अलिफ नहीं कुछ नहीं बोले, बस जो मैं बोल रही हूँ उसी को बस रिपीट करें, और रिपीट करने के बाद फिर माइक म्यूट करें। 2 एक्सेप्शन है, ये मत बोले, बस बोले गोलता, 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 3 बार बोले, गोलता, एक मिनट, नहीं ये ताय मरबूता वगैरह कुछ भी ना बोले प्लीज, 1 मिनट। जो मैं सिर्फ आप वही बोले जो मैं बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ स्क्रीन पे देख के आप बस बोले गोलता, गोलता, और उसके बाद अब इसको रिपीट करें, मेरे पीछे इसको रिपीट करें, अलिफ हमजा, अलिफ हमजा, अलिफ हमजा, अलिफ हमजा, अलिफ हमजा। जज़ाकल्लाह खैर। अब माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर। तो बस ये 2 एक्सेप्शन है जिसमें मफऊली हालत में या नसब की हालत में या को वाली हालत, हम बार बार कह रहे हैं ना, को वाली हालत, ने वाली हालत, तो आप इससे अपनी उर्दू से रिलेट कर लीजिएगा। तो को वाली हालत में जब हम किसी इस्म को लिखेंगे, वो तनवीन के साथ अगर है, ये देखें यहाँ सब तनवीन के साथ वाली बात हो रही है, अभी जबर सिर्फ सिंगल हरकत की हम बात नहीं कर रहे हैं, तनवीन वाली बात कर रहे हैं। तो तनवीन से हरकत, तनवीन अगर है तो हमें अलिफ का इजाफा करना होगा अगर नसब की हालत में वो इस्म जा रहा है। एक्सेप्शन है गोलता और अलिफ हमजा, याद रखिए सिर्फ हमजा नहीं कहेंगी आप, अलिफ हमजा, इसीलिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है। ये देखिए ये एंड हो रहा है वाव हमजा, तो अगर किसी ने सिर्फ हमजा लिख लिया, याद कर लिया, तो उससे गलती हो जाएगी। जब सूअन है जिसका की मतलब है बुराई, तो अब यहाँ पे सूअन, इसके तर्जुमे में हम अलिफ ऐड करेंगे, सूअन, ठीक है। और ये सारी चीजें जब आप तिलावत करेंगी ना, तो आज और जब आज की आप तिलावत करेंगी अपनी तजवीद के सबक की, अपनी पर्सनल तिलावत कुरान की, तो उसमें जब ये तनवीन के साथ आएंगे तो आप देखती चलें कि अच्छा ये इस हालत में है, ये रफा की हालत में है, ये नसब की हालत में है, ये जर की हालत में है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये वो दिखाया था, इसी को जो भी बताया है उसको हम एक बार पढ़ भी दे रहे हैं। जिस इस पर हालत नसब में 2 जबर आते हैं, उसके आखिर में अलिफ बढ़ा दिया जाता है। मसलन मोहम्मदुन से जब हमको मोहम्मदन लिखना हुआ, अगर कोई सिर्फ मोहम्मदन 2 जबर के साथ लिख देगा तो वो गलत हो जाएगा, इसे अलिफ के साथ ही लिखना जरूरी है। इसी तरह किताबुन से किताबन, थोड़ा बड़ा करूं, रसूलुन से रसूलन, देखिए अलिफ का इजाफा हुआ, लेकिन इस कायदे के 2 एक्सेप्शन है। पहला ये कि अगर आखिर में गोलता हो, जैसे अगर किसी ने जन्नतुन से जन्नतन ऐसे लिख दिया तो अब ये गलत हो जाएगा, उसे जन्नतन गोलता के ऊपर ही बस 2 फतहा तनवीन लगा देनी है, अलिफ ऐड नहीं करना है। आयतुन से आयतन, गोलता है तो यहाँ अलिफ का इजाफा नहीं होगा, लेकिन अगर खुली हुई ता है, जैसे कि अभी आपको दिखाया था बिनतुन है, तो अब इसमें अलिफ का इजाफा होगा, ठीक है।
इसी तरह दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है अलिफ हमजा, अलिफ हमजा समा उन से समा अन। लेकिन अगर शई उन है तो आप जैसे यहाँ पे दिखा दिया था कि शई उन है, देखें ये एग्जाम्पल है आपका, यहाँ भी देखिए अलिफ का इजाफा हुआ, इसलिए अगर आपने सिर्फ हमजा याद कर लिया तो गलती हो जाएगी। आपको याद करना है अलिफ हमजा, जो अल्फाज अलिफ हमजा के साथ एंड होंगे उसको नसब में लिखते वक्त हमें अलिफ का इजाफा नहीं करना है। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। एक बार फिर मैं कहूंगी कि सिर्फ वो बोल दें जिनको समझ नहीं आई। अगर खामोशी है तो मैं समझूंगी कि जितना पढ़ाया जो बताया है वो आप सबको समझ आ गई है। मैं बस 5 सेकंड वेट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। समझ तो आ गई, लेकिन अभी काफी रिपीट करने की जरूरत है क्योंकि ये काफी लेंथी भी था और थोड़ा सा तवज्जो तलब भी है। इंशाल्लाह दोबारा रिपीट करने से ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो मैं रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला आज ही क्लास में भेज दूंगी। जी मैम रिकॉर्डिंग भेजिएगा, फिर वो दोबारा सुन के ना जो चीजें रह जाती हैं वो हो जाती हैं तो बस। जी हाँ जरूर, इंशाल्लाह ताला हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे। और सिस्टर मेरा एक सवाल है आपसे। बोले। जी मैं तो ये पहली दफा ही सारा कुछ पढ़ रही हूँ, तो मुझे तो थोड़ा कच्चा पक्का ही समझ में आ रहा है, अच्छी तरह नहीं आ रहा। और ये उर्दू के रूल कानून भी मुझे इतना पता कोई नहीं है, तो मेरे लिए तो एक किस्म का ये पहली क्लास से ही है, तो मुझे पूरा ठीक तरह से नहीं आ, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अगर 20% भी समझ में आ रहा है ना तो आप खुश हो जाएं, आपको बहुत समझ में आ रहा है। ठीक है जी 40-50% आ रहा है, लेकिन पूरा नहीं आ रहा है। फिर तो आप डिस्टिंक्शन पे हैं। अगर 40% समझ में आ रहा है और आप पहली बार सुन रही हैं तो बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। जज़ाकल्लाह खैर। मतलब एक बात याद रखें कि पहली ही क्लास में और पहली बार ही सुनने में 100% की तवक्को ना करें, मेहनत करनी होगी, हमको इसको बहुत रगड़ना पड़ेगा। मैं भी मेहनत करूंगी। तो मुझे डिस्टर्बेंस किस लिए आ रही है? मैम वैसे ये ग्रामर को याद करने का तरीका क्या है? बार बार रिपीट करना? और ऐसा है कि मैं क्लास में ऑडियो बना के भेजती हूँ। मैं दूसरी क्लास का वक्त लेना नहीं चाह रही कि आपके सवाल का कि ग्रामर को याद करने का क्या तरीका है, मैं अपना तरीका आपको बताऊंगी। ठीक है जी, वो पहली दफा कर रहे हैं ना तो कुछ चीजें भी मिक्स अप हो जाती हैं। उर्दू उनके लिए नया है तो मेरे लिए भी उर्दू नई ही लैंग्वेज, मतलब आई एम ऑन द सेम बोट। तो मैं इसलिए जो टिप दूंगी वो उनके भी काम आएगी। बस मुझे क्लास खत्म करने की इजाजत दें। इंशाल्लाह आप अपने सवाल जो है ग्रुप में भेजें। मैं जो यहाँ पे आप करना चाह रही हैं और वक्त की कमी की वजह से हम आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने ग्रुप में सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला हम वहाँ जवाब देंगे। मुझे क्लास खत्म करने की इजाजत दें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।